بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ ابتدا ہے رب کریم کے نام سے جو تمام جہانوں کا لا شریک مالک و مختار ہے۔ اے اللہ اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما، آمین۔ پنجاب میں مونسون کی طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ چھتیں گرنے اور کرنٹ لگنے سے 21 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مختلف شہروں میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ صوبے بھر میں ساون اپنے پورے جوبن پر ہے۔ بارشیں جہاں راحت کا باعث بن رہی ہیں، وہیں حادثات بھی رونما ہو رہے ہیں جو گھروں کے اجڑنے کا سبب بن رہے ہیں۔ تانلیاں والا میں ایک خاندان پر قیامت گزر گئی۔ ایک گھر کے 12 افراد بارش کے باعث گھر کی چھت زمین بوس ہونے سے نیچے دب گئے۔ 7 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ حادثے میں 5 لوگ زخمی بھی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت لاشوں اور زخمیوں کو ملبے سے نکالا۔ فیصل آباد کے نواحی گاؤں میں بھی موسلادھار بارش سے مکان کی چھت گر گئی۔ ملبے تلے دب کر 3 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے۔ مرنے والوں میں 2 بہنیں اور 2 بھائی شامل ہیں۔ ملتان اور پاک پتن میں خاتون سمیت 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ قصور کے مختلف علاقوں میں بھی طوفانی بارش سے 3 چھتیں گر گئیں جس سے 2 خواتین سمیت 3 افراد دم توڑ گئے۔ بہاڑی میں کرنٹ لگنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ چنیوٹ جھنگ روڈ پر بھی کرنٹ لگنے کا واقعہ پیش آیا جس میں 14 سال کا نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا۔ لیا میں بارش کے باعث گھر کی دیوار گرنے سے خاتون جان کی بازی ہار گئی۔ مالاکنڈ میں مٹی کا تودا گرنے سے ایک بچہ جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو درگئی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے حادثات میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ عثمان بزدار نے زخمی افراد کو علاج کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ ادھر لالیہ میں 4 گھنٹوں کی بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول کر رکھ دیا۔ شہر کے مین بازار اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ شکیل عباس کی رپورٹ۔ لالیہ میں جہاں طوفانی بارشوں سے موسم خوشگوار ہو گیا تو وہیں سیوری کا نظام بھی ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ جامع مسجد روڈ، ڈاکٹر شفقت روڈ، اسسٹنٹ کمشنر حافظ روڈ، بنگلہ روڈ سمیت شہر کی گلیاں نہروں کا منظر پیش کرنے لگی۔ بارش کا پانی بازار میں موجود دکانوں اور گھروں میں داخل ہو گیا۔ دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہوئی ہے، بارش کی وجہ سے ہمارا پورا نظام زندگی کے درہم برہم ہو چکا ہے۔ یہ جب بھی بارش ہوتی ہے ہماری گلیاں بازار کچھ پانی سے بھر جاتے ہیں اور ہمارے بچے اس وجہ پانی میں کھیل کر بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں۔ بچے یہاں پہ بڑے بھی ڈینگی، طاعون، ٹائیفائڈ وغیرہ کے شکار ہوتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف حال کو دیکھتے ہوئے ایم پی تیمور امجد لالی بھی میدان میں آ گئے اور پانی کی نکاسی کو یقینی بنانے کے لیے خود کام کی نگرانی کرتے رہے۔ بارش شروع ہونے کے بعد بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا جو کہ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی درست نہ ہو سکا۔ کیمرہ مین عبدالرزاق کے ساتھ شکیل عباس، سچ نیوز، لالیاں۔ ایک طرف سمارٹ لاک ڈاؤن تو دوسری جانب مویشی منڈیوں میں رش کے باعث کورونا وائرس پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا۔ ایک طرف تو سمارٹ لاک ڈاؤن تو دوسری جانب مویشی منڈیوں میں رش کے باعث کورونا وائرس پھیلنے کا خدشہ بھی بڑھ رہا ہے۔ بھکر کی مویشی منڈی میں ہزاروں کی تعداد میں بیوپاری بغیر کسی احتیاطی تدابیر کے مویشی منڈی میں خریداری میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اتنے کوئی سہولت کو نہیں، سارے لکھاں دے جانور ہوندے نے لتن ٹوٹ میں، اتنے کوئی جان کے دھکا شکا کو نہیں لہا مندا نالے کوئی چھاں دا کوئی تمبو شمبو کو نہیں۔ ایک طرف تو کورونا وائرس تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے تو دوسری طرف مویشی منڈی بھکر میں ضلع انتظامیہ بھکر کی طرف سے کورونا SOPs پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے اور نہ ہی مویشی منڈیوں میں پانی سمیت دیگر سہولیات کا انتظام کیا گیا ہے جو کہ ضلع انتظامیہ بھکر کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ بھکر کی مویشی منڈی میں ہزاروں بیپاری بغیر ماسک، بغیر حفاظتی تدابیر کے جانوروں کی خرید و فروخت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ قربانی ارجن پالن سارے سال انہوں کوئی محنت کا پھل نہیں مل رہا اس واسطے کہ کیونکہ وہ ہر بندہ جی دھوپ تے کھڑا ہے، جڑا آندا کار تے آدمی وہ چلا جاندا، کوئی سہولت نہیں جہاں نہیں۔ پنجاب حکومت نے ان منڈیوں میں کورونا کی وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مخصوص SOPs جاری کیے تھے اور عوام کو بار بار تنبیہ کی ہے کہ وہ جانوروں کی خرید و فروخت کے وقت احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تاکہ بیماری کے مزید پھیلاؤ سے بچا جا سکے، لیکن ضلع انتظامیہ بھکر خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے۔ سماجی فاصلہ، ماسک کا استعمال اور دیگر SOPs پر عمل درآمد کورونا وبا سے بچنے کی بنیادی شرط ہے، لیکن بھکر انتظامیہ ان SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروانے میں بری طرح ناکام نظر آتی ہے۔ کیمرامین سمیلہ شاکری کے ساتھ ناصر عباس بلوچ، سچ ٹی وی بھکر۔ عید قربان قریب آتے ہی ملک کے دیگر شہروں کی طرح سکھر کی تحصیل پنواقل میں بھی مویشی منڈی تو سج گئی مگر جانوروں کی قیمتیں گزشتہ سالوں کی نسبت زیادہ ہونے کے باعث خریدار خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور۔ عید قربان آتے ہی مویشی منڈی سج گئی۔ سکھر ریجن کے مختلف شہروں سے بیپاری تو جانور لیے منڈی پہنچ گئے۔ جانوروں کی قیمتیں زیادہ ہونے کے باعث خریدار نہ ہونے برابر ہیں۔ مویشی منڈی میں موجود خریدار کہتے ہیں کورونا کے باعث بیپاری جانور مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس سال سنت ابراہیمی کی ادائیگی مشکل نظر آ رہی ہے۔ جانور لینا انشاءاللہ بڑی امید لے کے آتے کہ جانور لے کے جائیں گے، لیکن یہاں اتنی مہنگائی لگی پڑی ہے کہ نا امید ہے یہاں سے بس لے کے آنا۔
अगर कोई 85 बता रहा है तो बस पूछो तो क्या लगाएगा, 2000 रुपये कम कर देंगे, बस 3000 रुपये कम कर देंगे, बस इससे कम है ही नहीं। यहाँ पे जो है ना बहुत है यार, अभी जो है बेले वगैरह जो है लॉकडाउन की वजह से अभी रेट भी कम मिल रहे हैं, रेट भी जो है ना बहुत सारे हैं। मवेशी मंडी में आने वाले व्यापारियों को चाहिए जानवरों की कीमतों में इजाफा न करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान भाई सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सके। कैमरा टीम के साथ फिदा मीरानी, सच न्यूज पनवाकिल। मुल्क में वबाई सूरत हाल के पेश नजर खानपुर में कुर्बानी के जानवरों की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। वतन अजीज में कोरोना वायरस के पेश नजर खानपुर के एक मवेशी पाल शख्स ने कुर्बानी के जानवर फरोख्त के लिए मंडी मवेशियों का रुख करने की बजाय ऑनलाइन सिस्टम के तहत जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू कर दिया है। ऑनलाइन सर्विस के जरिए न सिर्फ कोरोना के फैलाव को मुमकिन हद तक रोका जा सकता है बल्कि खरीदारी करने वाले मंडी मवेशियों के रश से भी बच सकते हैं। जी, हमने कोरोना वायरस की पेश नजर कोरोना वायरस को देखते हुए ऑनलाइन सिस्टम जानवरों की खरीद फरोख्त के लिए सिस्टम ऑन किया है। कुर्बानी के जानवरों के खुराक का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है ताकि चारे और दीगर लवाजमात से इनकी खूब तवाज़ा की जा सके। हमने इनको सब्ज़ चारा और चोकर और मकई का आटे से पाला हुआ है। जानवर बहुत खूबसूरत हैं, जो भी हमारे पास आता है। जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए ऑनलाइन सिस्टम खानपुर के शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। कैमरा टीम के साथ जहांजेब खान, सच न्यूज खानपुर। पिपला की मवेशी मंडी में हुकूमत की जानिब से आयद करदा कैटल टैक्स पर व्यापारी, मकामी सियासी शख्सियात और खरीदार सरापा एहतजाज बन गए। मवेशी मंडी पिपला में मकामी सियासी शख्सियात ने व्यापारियों, खरीदारों और शहरियों की नुमाइंदगी करते हुए दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने मॉडल मंडियों से मुतालिक जिन सहूलियात का वादा किया वो पूरी करें, अवाम टैक्स जरूर देंगे। साबिक उम्मीदवार MP मलिक शहजाद इकबाल बच्चर ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते लगने वाली मवेशी मंडी में पुरअमन एहतजाजी करने पर 110 लोगों के खिलाफ FIR का इंदराज किया गया, जिसकी शदीद मजम्मत और FIR खारिज करने का मुतालबा करते हैं। तो हम इनके मुतालबे पर इनके पुरअमन एहतजाज में शामिल हुए। उस दिन भी पुरअमन एहतजाज था। ये कोई मुजाहिमत नहीं है इसमें, ना ही कोई हमारी इसमें है कि हम बगावत कर रहे हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे। लोग टैक्स देने के लिए पहले दिन से तैयार हैं। मलिक शहजाद इकबाल बच्चर का मजीद कहना था कि टैक्सेस में कमी, मवेशी मंडियों को जदीद तर सहूलियात से आरास्ता करने समेत 110 पुरअमन एहतजाजियों के खिलाफ दर्ज FIR खारिज की जाए। दूसरी जानिब मवेशी मंडी में 3 से 4 मकामात पर कई माह से गैर कानूनी मोटरसाइकिल स्टैंड कायम हैं, जो हफ्तावार लगने वाली मवेशी मंडी पर लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसे इंतजामिया की मिली भगत करार दिया जाए या फिर इंतजामिया की नाअहली। बहरहाल इंतजामिया तवज्जो दे तो कानूनी पार्किंग के कयाम से हुकूमत को पार्किंग की मद में माहाना लाखों रुपए का रेवेन्यू हासिल हो सकता है। कैमरामैन अब्दुल गफार बचर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, तहसील पिपला, जिला मियांवाली। ईद कुर्बान करीब आते ही जैकबाबाद में जानवरों की कुर्बानी के लिए कसाब की एडवांस बुकिंग का अमल शुरू हो गया। फर्जंदान इस्लाम जहां दुनिया भर में सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए कोशां होते हैं, तो वहीं मेहनत कशों के रोजगार में नित नए मौके पैदा हो जाते हैं। ईद कुर्बान पर जानवर कुर्बान करने के लिए जैकबाबाद में कसाबों के एडवांस बुकिंग का सिलसिला जारी है। इस हवाले से कसाब का कहना है कि ईद उल फितर के लिए अभी बुकिंग के लिए आदमी जा रहे हैं, रोजाना आ रहे हैं। कभी बोलते हैं दूसरे दिन, कोई बोलता है पहले दिन। बस बुकिंग जारी है, इंशाल्लाह 2 दिनों के लिए हो जाएंगे। बकरी का जानवर ज़िबा करने के लिए जहां तेजदार छुरी की जरूरत पड़ती है, तो वहीं गोश्त को छोटे टुकड़े करने के लिए लकड़ी से बनी अड्डी की बड़ी अहमियत है। लकड़ी से बनी अड्डी आरा मशीन पे तैयार की जाती है। तैयार करने वाले मेहनत कश का कहना है कि ईद उल अज़हा आती है तो हमारे जो काम जो है हड्डियाँ जो है काम में आ जाती हैं। ये 200-300 हम इसके ऊपर बचाते हैं, बस यही रोजगार बढ़ जाता है हमारा। इसलिए ईद उल अज़हा के मौके पर ईद कुर्बान शरीफ फरीजा है, जिसके साथ लोगों के रोजगार के मौके भी जुड़े हुए हैं। कैमरा में नया सुमरुख के साथ दोस्तमुल्ला। ईद उल अज़हा करीब आते ही मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। ईद उल अज़हा करीब आते ही माफिया बेलगाम होती दिखाई दे रही है। सब्जियां और दीगर खुश्क मिसालजात की कीमतों को पर लगे। टमाटर 140 रुपए किलो, अदरक 500 रुपए किलो, प्याज 50 रुपए किलो और सब्ज मिर्च 120 रुपए किलो हो गई। जबकि खुश्क मिसालजात, गरम मसाला, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और दूसरे मिसालजात की कीमतों में 100% तक इजाफा हो गया। साल बाद आने वाली बड़ी ईद की खुशी भी माफिया को हजम नहीं हो रही और इंतजामिया महज कागजी कार्रवाई और फोटो सेशन तक महदूद नजर आती है। करीब आती जा रही है। सब्जियात और मसालाजात की कीमतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। लहसुन, प्याज और टमाटर और दीगर हल्दी इस्तेमाल होने वाली चीजें जो हैं उनकी कीमतें पहले से दुगना हो गई हैं और माफिया को कंट्रोल करने वाला कोई इंतजामिया नजर नहीं आती। करीब आती रहती है। सब्जियां मसालाजात की कीमत बहुत ज्यादा थी न। सब्जियां जिमें मसाले, थूम, टमाटर, इन्हें कीमत बहुत ज्यादा थी न।
ईद एक ऐसा इस्लामी त्योहार है जो अल्लाह ताला ने इंसान की खुशी के लिए बनाया है, लेकिन इस बड़ी ईद पर भी माफिया की मिली भगत से मजदूर तबके की खुशी मांद पड़ती नजर आती है। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीर जगी, पहाड़पुर, लिया। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में ईद करीब आते ही मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। ईद उल अजहा करीब आते ही लियाकतपुर तहसील भर में भी सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। शहरी सस्ती सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। कहीं रेट लिस्ट ही आवीजा नहीं है तो कहीं दुकानदार शहरियों से मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। गरीब आवाम तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, ऊपर से सब्जियों की कीमतों में इजाफे से शहरियों का जीना मुहाल हो गया। शहरियों ने मुतालबा किया है कि प्याज, अदरक, लहसुन समेत दीगर सब्जियों की कीमतें कम करके गरीब आवाम पर रहम किया जाए। कैमरामैन फैसल शाहिद के साथ साकिब सरवर कादरी, सच न्यूज लियाकतपुर। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। चकवाल के कस्बा देदोवाल का लिंक रोड बारिश के बाद नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब अब्बास। चकवाल के हल्का NH64 के इलाके दिदवाल का लिंक रोड बारिश के बाद नहर का मंजर पेश करने लगता है, जिसकी वजह से अहले इलाका को वहां से गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अहले इलाका का कहना है कि पिछली हुकूमतों ने भी इस छब्बर जो दिदवाल का लिंक रोड है इसको ठीक करने का वादा किया, मगर उन्होंने इस वादे को पूरा ना किया। बारिश होंदी है, ओवरफ्लो होंदा और जेड़ा गिरां है वो दो हिस्सा ही डिवाइड हो जाता। उस वक्त अगर कोई फौतगी हो जाती है या नमाजी जेडे लोग मसाजिद जाते हैं उन्होंने इंतहाई प्रॉब्लम होती है। 2.5 साल से पूरे इस गांव में पूरी जो कौंसल में 1 रुपए का काम नहीं हुआ। इससे पिछली हुकूमत में तनवीर साहब ने 3 करोड़ अलोकेट किए थे इस गांव के लिए। वो 3 करोड़ वो मुलाजा फरमाए इधर इस देखो इन छप्पड़ की हालत देखें। गांव जो घर हैं साथ वाले छोटे, उन घरों में भी इसका पानी गया हुआ है। इस रास्ते से ना जो बच्चे स्कूल जा सकते हैं, बहुत दूर से उनको गुजर के आना पड़ता है। और मसाजिद जो है साइड पे मस्जिद है कोई नहीं, यहाँ मस्जिद के जो नमाजी जितने आते हैं वो बेचारे बहुत सारा सफर करके बूढ़े हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि मौजूदा MNA हल्का NH64 सरदार जुल्फिकार अली खान दुल्ला हमारी दावत पर दिदवाल आए और हमारे मसाइल सुने। उन्होंने हमारे मसाइल को हल करने का वादा किया है। हमारी हुकूमत से अपील है कि हमारे इस मसले को हल करके हमारे इलाके में भी तब्दीली लाएं। कैमरामैन शाहजेब के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज, चकवाल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सावन रुत जारी है। बादल, बारिश, हवा ने माहौल को रंगीन बना दिया। इस्लामाबाद में पर्वतों पर झुके सुरमई बादलों ने शहरियों को मसहूर कर दिया। कराची में रिमझिम ने गर्मी से सताए हुओं को सुकून बख्शा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्रे करम ने समा बांध दिया। चरिंद परिंद चहक उठे तो हरियाली भी मुस्करा उठे। मॉनसून के तीसरे स्पेल ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एंट्री दे दी। ठंडी हवाएं भी चली, मेघा भी खूब बरसा। अब्रे रहमत और बरसेगा। मौसम का हाल बताने वालों ने बरखा रुत जारी रहने की नवीद सुना दी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मूसलाधार बारिश ने मौसम के रंग बदल दिए। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश बरसी। जेहलम, चकवाल, बखर, लिया, डीजी खान, बारखान, सोप, कश्मीर, एबटाबाद, हरीपुर, सवात, दीर, शांगला, बुनेर और मनसेरा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने गर्मी की छुट्टी कर दी। लाहौर में हल्की बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। कराची में भी हल्की बारिश ने समा बांध दिया। बारामूला, लिया और लद्दाख में खूब बादल बरसे। उधर सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहा। सक्खर, लड़काना, जैकबाबाद में आंधी के साथ बारिश की तवक्को है, जबकि थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, बदीन और ठट्टा में हल्की बारिश हो सकती है। पेशावर में आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। जिस तरह आपने सुन लिया, रोज बरोज कीमतें बढ़ रही है। पहले जो 800 साढ़े 800 का तेला ये लोग बेचते थे, आजकल 1200 साढ़े 1200 तक बेचते हैं ये लोग। बिल्कुल तकरीबन 1 महीने से तो आटे का जो उतार चढ़ाव है वो बिल्कुल हो रहा है और तकरीबन 1 हफ्ते में तकरीबन 100 से 200 रुपए फी 20 किलो बैग में इजाफा हुआ है। तकरीबन घरेलू अशिया जितने भी थी सब के सब महंगी हो रही है। तनख्वाहें वही की है और अशिया इतनी महंगी हो रही है, आटा महंगा हो रहा है। अब पता नहीं गंदम नहीं आ रहा, गंदम आ रहा है, कोई माफिया उसे कहा रहा है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा। जिस तहरीक के लिए हमने वोट दिया था उस लिहाज से तो हमें कुछ नहीं मिला। तहरीक इंसाफ का मैं सबसे बड़ा हामी हूँ, लेकिन अभी मैं उनके बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि अपोजिट चला गया हूँ।
चकवाल की तहसील तलागंग में असिस्टेंट कमिश्नर और पंजाब फूड अथॉरिटी ने फ्रूट मंडी में कार्रवाई करते हुए 35 मन से जायद मुजरे सेहत आम बरामद करके ज़ाय कर दिए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर तलागंग हाफिज इमरान खोकर ने पंजाब फूड अथॉरिटी के हमरा तलागंग सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा किया, जहां उन्होंने आम की पेटियों को चेक करने के दौरान गैर मेयारी कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल पर कार्रवाई अमल में लाते हुए 1.5 लाख से जायद मालियत के 1440 किलोग्राम आम जब्त करके ज़ाया कर दिए। उनका कहना था कि कैल्शियम कार्बाइड से कैंसर और दीगर मूजी अमराज के फैलने का खतरा होता है। इंसानी जानों से खेलने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। आफ्ताब मलिक, सच न्यूज, तलागंग। खानेवाल को कबीरवाला से मिलाने वाली वाहिद हाईवे टूट फूट का शिकार हो गई। जगह जगह गड्ढे, नोकीले पत्थर, गर्द आलूद माहौल और टूटी फूटी सड़कें, ये मनाजिर हैं कबीरवाला को खानेवाल से मिलाने वाली हाईवे के। खस्ता हाल सड़क के बायस 10 किलोमीटर की मुसाफत घंटों में तय होने लगी। जानलेवा हादसात रोजाना का मामूल बन गए। खानेवाल रोड कबीरवाला बहुत टूट फूट का शिकार है। यहाँ बहुत हादसा होते हैं और गर्दोबार इतने हैं कि आदमी को सांस लेना दुश्वार है। हमारा कारोबार बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। शहरियों का कहना है कि टूट फूट का शिकार सड़कों की वजह से गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचता है। सड़क की बदहाली की वजह से जहां शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है, वहीं कारोबार भी मुतासर हो रहा है। रोज मिट्टी का गट्टा फक फक के थक के बैठे हैं तो कारोबार भी बिल्कुल कोई नहीं। जो ट्रैफिक नहीं होगी तो कारोबार ऑटोमैटिक नहीं बंद हो जाएंगे। तो ये मुतालबा साडा है कि जल्द से जल्द काम खत्म किया जाए ताकि सानू सुकून असी कारोबार अपने कर सकिए। हाँ, ये लाहौर मोड़ से ये कबीरवाला तक रोड बहुत खराब है और इतने बड़े बड़े खड्डे हैं। रात को जो गाड़ियां लगती हैं, किसी का टायर हाथ टूटा होता है, किसी का पंचर होता है और ये बहुत प्रॉब्लम है। और गर्दा गुबार इतना है कि बंदा दिन को चल नहीं सकता। साइड पर चलने पे बंदा मजबूर है, इतना मिट्टी गर्दा गुबार उड़ता है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से अपील की है कि खानेवाल रोड की असर नौ तामीर की जाए ताकि शहरों की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन बकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। हरीपुर में खानपुर रोड की तामीर का काम सुस्त रवि का शिकार है। खानपुर रोड पर जारी काम की सुस्त रवि को अवाम ने इलाकाई नुमाइंदों की नाअहली करार दिया है। खानपुर रोड पर जारी काम गुज़श्ता 6 माह से सुस्त रवि का शिकार है। रोड पर बने बड़े बड़े गड़े आए रोज हादसात का सबब बन रहे हैं। इसके अलावा सारा दिन धूल मट्टी और गिरद गुबार की तूफान ने जहां मुसाफिरों की नाक में दम कर रखा है, वहां पर इस रोड इलाकाबाजियों के लोग गिरद गुबार की वजह से नाक, गले, डस्ट, एलर्जी जैसी बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। ये खानपुर पे जा रहा है तो जगह जगह से ये टूटा हुआ है। बाज़ दफ़ा सोचते हैं कि शायद ये नया बन रहा है, इसको मरम्मत कर रहे हैं, लेकिन इसमें इस कदर खड्डे हैं। गाड़ी अगर यहाँ से गुजारे, हम सेल्स का काम करते हैं, गाड़ी यहाँ से गुजारे, हर दूसरे तीसरे दिन मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। पिछले 6 माह से रोड का काम जारी है और नामुकम्मल है, जिसकी वजह से एक अजाब में मुब्तला है। मुकामी MNA और वफाकी वजीर उमर अयूब खान के नोटिस में बार बार लाने के बावजूद सुनवाई न हो सकी। आवाम का अपने नुमाइंदों से मुतालबा है कि इस रोड की तमीर को जल्द अज जल्द इंजाम को पहुँचाकर आवाम को इस रोड से होने वाली बीमारियों से बचाया जाए। ताहिरवान, सच न्यूज, हरीपुर। फैसलाबाद की तहसील तांदियावाला के शहरी मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। फैसलाबाद की तहसील तांदलावाला के बेशतर कस्बात और चुकूक साफ पानी जैसी अजीम नेमत से भी महरूम हो गए। शहरी दूर दराज इलाकों से महंगे दामों मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर। इंतजामिया खामोश, अहले इलाका का ज़ार तशवीश अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक तहसील तांदलावाला, कंजवानी, मामू कांजन, किलियावाला और इसके मुलहका सैकड़ों देहात और चुकूक के बासी जेर जमीन का पानी जहरुलूदा होने की वजह से मुख्तलिफ मुजरे सेहत पानी की सप्लाई करने वालों के हाथों लुटने पर मजबूर हो चुके हैं। यही वजह है कि जहां शहरी जहरीली केमिकल्स मिले पानी खरीदने पर मजबूर हैं, वही उनकी जेबों पर ये माफिया सरेआम डाका डाल रहा है। कस्बा किलियावाला, गढ़ फतेह शाह और मामू कांजन के शहरी अब मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जिनमें मैदा, जिगर, एलर्जी, गले का वरम, नजला, बुखार और दीगर जिल्दी अमराज तेजी से फैल रहे हैं। मुंतखब अवामी नुमाइंदगान ने गढ़ फतेह शाह, कंजवानी, किलियावाला और इसके गिरदनवा में ना तो कोई पीने के लिए साफ पानी का प्रोग्राम अभी तक शुरू किया और साथ मुतलका इंतजामिया ने भी नाकिस पानी की सप्लाई करने वालों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई, जिस पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों ने मुतलका इंतजामिया की बेहिस्सी पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा, सच न्यूज, तांदलावाला। कमालिया की अहम शाहराहों पर जहां आवारा कुत्तों की भरमार है, वहीं AC ऑफिस कमालिया के अहाते में आवारा कुत्तों ने डेरे डाल दिए हैं।
کمالیہ کی اہم شاہراہوں پر آوارہ کتوں کی بھرمار تو وہیں اے سی آفس کمالیہ کے احاطے میں بھی آوارہ کتوں نے ڈیرے ڈال لیے جو انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل ہیں، جبکہ 6 ماہ کے دوران تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں کتوں کے کاٹنے کے 495 مریض رپورٹ ہوئے، لیکن میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی جانب سے کتوں کو تلف کرنے کے اقدامات نہیں کیے گئے۔ کمالیہ کی اہم شاہراہوں پر آوارہ کتے گھومتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بچوں، عورتوں اور بزرگوں کو کاٹنے کے واقعات بھی سامنے آتے رہے، لیکن انتظامیہ بری طرح ناکام دکھائی دیتی ہے اور اے سی آفس کمالیہ میں بھی آوارہ کتوں کی بھرمار انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ شہری حکام بالا سے اپیل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ کتوں کو تلف کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ کتوں کے کاٹنے سے بچا جا سکے۔ اسد راجپوت، سچ نیوز ٹی وی، کمالیہ۔ رحیم یار خان میں ڈیف ایسوسی ایشن نے ڈسٹرکٹ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ رحیم یار خان میں گونگے بہرے افراد کی تنظیم ڈیف ایسوسی ایشن کا ڈسٹرکٹ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے صدر غلام ربانی نے کہا کہ گونگے بہرے افراد کے لیے ریلوے کی ٹکٹ میں 50% رعایت کو بحال کیا جائے۔ محکمہ ریلوے نے ایک نوٹیفیکیشن میں معذوروں کو ریلوے ٹکٹ رعایت بحال کر دی ہے، مگر گونگے بہرے افراد کا نام شامل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ ریلوے کو چاہیے کہ معذور افراد کے ساتھ گونگے بہرے افراد کو بھی ریلوے ٹکٹ میں رعایت دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے جس میں گونگے بہرے افراد کا نام شامل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ریلوے سے ہزاروں گونگے بہرے افراد 50% رعایت پر ریلوے ٹکٹ سفری سہولت سے حاصل کرتے ہیں اور مقامات کی فراہمی ان کا بنیادی حق ہے۔ اس موقع پر گونگے بہرے افراد نے اپنے مطالبات کے حق میں لکھے ہوئے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ حسن رحمانی، بیورو چیف سچ نیوز، رحیم یار خان۔ ملک کو سرسبز بنانے کمیشن جہلم میں مونسون شجرکاری مہم 2020 کے تحت قلعہ روہتاس اور مختلف مقامات پر شہریوں میں مفت پودے تقسیم کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر جہلم راؤ پرویز اختر نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام مونسون شجرکاری مہم 2020 پلان فار پاکستان کے حوالے سے قلعہ روہتاس میں اور شہر کے مختلف مقامات میں پودے تقسیم کیے اور اس کے ساتھ قلعہ روہتاس میں پودے بھی لگائے اور اس کے ساتھ ماس پلانٹنگ کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر جہلم راؤ پرویز اختر کا کہنا تھا شجر کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو قرآن پاک کی تعلیم کی طرف توجہ کیجیے۔ انشاءاللہ ضلع جہلم میں جہاں بھی ضرورت ہوئی ہے انتظامیہ کو ٹائیگر فورس ان کے 2 قدم آگے ہو کے کام کرے گی اور اس سے ہمارا جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس میں بھی کافی اثر پڑتا ہے۔ ہم لوگ پودے اس لیے آج لگا رہے ہیں تاکہ جو ہمارا ماحول ہے وہ بہتر ہو سکے، بلکہ بہترین ہو سکے، اور جو ہے ہم لوگ کا یہ صرف ایک بندے کا کام نہیں ہے بلکہ ہم سب کو مل کر یہ کرنا چاہیے، اور اپنے گھر پر یا گھر کے قریب جو بھی آپ کو جگہ نظر آتی ہے جہاں پہ پودے لگانے کی ضرورت ہے آپ وہاں پر پودے لگائیں۔ پودوں کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ایک انسان کی زندگی ہے، کیونکہ اس سے ہمیں آکسیجن میسر ہوتی ہے، اور جب ہم اس کو جلاتے ہیں یا اس سے کاغذ بنتے ہیں، گتا بنتا ہے، اس کو جب جلاتے ہیں تو وہ زندگی کو ختم کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ آخر میں ڈی ایف ای صدیق مغل نے کہا کہ جہلم میں شجرکاری مہم کو جاری رکھنا ہماری ترجیح میں شامل ہے، جبکہ ماحولیاتی آلودگی سے بچاؤ کے لیے عظیم شہریوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ کیمرہ مین اسنان علی کے ساتھ بابر حسین، سچ نیوز، جہلم۔ محکمہ تعلیم لیا میں ذاتی پسند ناپسند کے بنیاد پر فنڈز کی تقسیم کا انکشاف ہوا ہے۔ لیا میں جب انتظامی عہدوں کی بندر بانٹ ہوئی تو مقامی ایم پی اے کے حصہ میں محکمہ تعلیم میں چیف ایگزیکٹو کی تعیناتی آئی۔ موصوف کو ضلع بھر میں قابل صرف اپنا ایک قریبی عزیز ملا جس کو تعینات کرایا۔ جب انتظامی عہدوں پر سیاسی تعیناتیاں ہوتی ہیں، اداروں میں کام بھی جرانے اور نذرانے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ضلع بھر میں موجود 200 کے قریب سرکاری سکولوں میں صرف 5 سکولوں پر ہی چیف ایگزیکٹو تعلیم مہربان ہوئے۔ 5 میں سے 4 بوائز سکول کو میرٹ صرف سی او تعلیم سے سکول سربراہان کا جرانہ ہی تھا، جبکہ 187 سکولوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ گورنمنٹ ایم سی اے اسکول میں تعیناتی کے دوران سی او موصوف نے اپنے ٹی اے ڈی اے کے فنڈ حاصل کرنے کے لیے اور خود کو مالی فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کھیل کھیلا۔ اکروا پروی کے اس کھیل میں سی او تعلیم کے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر فنانس تعلیم برابر کے شریک نکلے۔ کیمرہ مین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، سچ نیوز، لیا۔ پاکستان کا قومی پرندہ چکور ہے جو ایک انتہائی خوبصورت پرندہ ہے اور محبت میں جذبات کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہر قوم کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، ان علامتوں میں سے ایک علامت پرندہ بھی ہے، اور پاکستان کا قومی پرندہ چکور ہے جو خوبصورتی اور عادات میں اپنی مثال آپ رکھتا ہے۔ چکور کی منفرد عادت یہ ہے کہ یہ چاند سے بے حد محبت کرتا ہے، اپنے آرام اور جان کی پرواہ کیے بغیر تند و تیز ہوا اور سرد موسم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ساری رات چاند کو تکتا رہتا ہے۔ چکور ترکی سے لے کر افغانستان، انڈیا سے مغربی ہمالیہ پہاڑی سے نیپال تک پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور علاقوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ چکور کی پشت کا رنگ ہلکا براؤن اور سینے کا رنگ سرمئی ہوتا ہے۔ دم اور گردن کی درمیانی حصے پر دونوں جانب سفید اور کالے رنگ کی پٹیاں ہوتی ہیں۔ چکور کی چونچ اور آنکھ سے ہوتی ہوئی ایک کالی پٹی
गले तक जाती है। इस पट्टी को कंठमाला कहा जाता है, जिसको देखकर ऐसा लगता है जैसे चकोर ने हार पहना हुआ है, जिससे इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा हो जाता है। चकोर के गले का रंग सफेद, चोंच और टांगों का रंग जाफरानी होता है। चकोर की दुम से मुताल्लिक एक दिलचस्प बात यह है कि इसकी दुम पर पूरे 14 पर होते हैं, ना ही कम ना ही ज्यादा। चकोर खुराक के तौर पर कई इकसाम के बीज और छोटे छोटे कीड़े खाते हैं। आराम के लिए एक नहीं बल्कि कई ठिकाने बनाते हैं। चकोर अपने जय मस्कन झाड़ियों के नीचे और चट्टानों की ढलवान पर बनाते हैं। चांद चकोर और चांदनी का दरीना ताल्लुक है। चकोर पूरे चांद की रात को नूरानी रात की बुलंदियों पर उतरते हुए चांद तक पहुंचने की कोशिश तो करता है, मगर रसाई हासिल नहीं कर पाता। कैमरा टीम की हमारा आसिफ रजा आशिक, सच न्यूज, नवाबशाह। हरिपुर में गर्मी का खुशदाका फल लीची पक कर तैयार हो गया। हरिपुर हजारा में अपना एक अहम मुकाम रखता है। वहीं पर हरिपुर के दौर किनारे लीची के दिल फरेब बागात में लगी लीची देखने में जितनी खूबसूरत और शानदार है, खाने में इससे ज्यादा मजेदार है। लीची इन दिनों पंजाब के अलावा पाकिस्तान से आए सैलानियों की खासी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। हरिपुर शहर में लीची के जगह जगह स्टॉल लगे नजर आते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक लीची कोरोना वायरस की बीमारी में बहुत मददगार साबित हुई है। मौसमी खराबी की वजह से लीची की पैदावार में इस साल खातरख्वाह कमी आई है, तो दूसरी तरफ किसान महंगाई की वजह से खातरख्वाह दाम न मिलने का शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस साल जी कोरोना वायरस की वजह नाल फल बहुत कमी हुई है, बहुत कम फल हुआ है, क्योंकि इस साल बीमारी की वजह से गंदम भी कम हुई है, फलों में भी फर्क आया है बहुत। लीची बहुत कम हुई है क्योंकि बनी नहीं है, बहुत छांट बन गई है इस दफा। हुकूमत की तरफों हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, ना कोई खाद मिल रही है दरख्तों के लिए, ना कोई दवाई मिल रही है, ना और कोई पैकेज हमें दे रहे हैं। बस हम अपनी तरफ से जो कोई कर रहे हैं पूरा ही नहीं हो रहा है हमसे। देखो जी, ये शुम्बरी में मजदूरी करना बच्चों की रोजी के लिए हम इसे फरोख्त करते हैं जी। बाग से ही हमें महंगी मिल रही है जी। हमें 11,500 रुपये मन भी दे रहे हैं जी, 12,000 रुपये मन हम बेच रहे हैं। बेचने से कोई दाने छाने खाने में भी चले जाते हैं, बस शुक्र है पास हो जाती है। अगर हुकूमत उसमें कोई हमारी मदद करे, बागात वालों की मदद करे, कोई गवर्नमेंट हमें खाद दे, कोई इसकी फैसिलिटी महकमा ज़राअत वो हो। हुकूमत की अदम तवज्जो और मुनासिब रेट न मिलने के बायस हजारा की सौगात लीची में दिन ब दिन कमी होती जा रही है। ताहिराबान, सच न्यूज, हरिपुर। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।